انہوں نے 3 ماہ سے زیادہ اپنا ٹائم جیل میں گزار دیا ہے اور سپریم کورٹ کے ہمارے پاس ججمنٹس موجود ہیں. کم سے کم سزا کے اوپر فوکس رکھا جائے. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. 90 لاکھ انہوں نے رشوت میں انہوں نے لیے تھے, وہ تو ہم لوگوں نے ریکور کر لیے ہیں. سب چیزیں سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے جب ان کو اریسٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ انہوں نے ان سے لیے تھے, جس میں ان کے فونز ہیں, ان کے لیپ ٹاپس ہیں. معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی جوا ایپس کی تشہیر کے مقدمے میں تقریباً 4 ماہ بعد ضمانت منظور ہو گئی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے ہیں. ضمانت کے بعد ڈکی بھائی کا جو یوٹیوب پر ولاگ آیا, اور حقیقت میں یہ ولاگ نہیں بلکہ NCCIA پر الزامات کا طوفان تھا جس نے اس ادارے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. رہائی کے بعد اپنے پہلے ولاگ میں ڈکی بھائی نے الزام لگایا کہ گرفتاری کے دوران 2 افسران نے نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ کروڑوں روپے رشوت بھی طلب کی. تفتیش میں مکمل تعاون کے باوجود انہیں تھپڑوں, دھمکیوں اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے ایک انوکھا الزام یہ بھی عائد کیا کہ ایک افسر نے دوران تفتیش 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال پر لا کے کہا, یہ ڈکی بھائی ہے, جوئے کی تشہیر کرتا ہے, اسے جانتے ہو, اس کی ویڈیوز آئندہ سے مت دیکھنا. اور پھر اس پر اس دوران تشدد بھی کیا جاتا رہا. اور ڈکی بھائی کے الزامات پر NCCIA کا موقف بھی سامنے آیا ہے. ترجمان نے واضح کیا ہے کہ بدعنوانی ادارے نہیں افراد کرتے ہیں اور ادارے کی زیرو ٹالرنس پالیسی برقرار ہے. تحقیقی عمل میرٹ پر چل رہا ہے اور FIA اینٹی کرپشن سیل بھی معاملہ دیکھ رہا ہے. واضح ہے اس سے پہلے ڈکی بھائی کی اہلیہ کے جو الزامات تھے اس پر 6 NCCIA افسران سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جس پر ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں. ڈکی بھائی کے الزامات میں کتنی حقیقت ہے, ثبوت کیا موجود ہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈکی بھائی بیرسٹر امرت احمد شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بیرسٹر صاحبہ, ڈکی بھائی نے جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں, اس حوالے سے عدالت میں کتنے اور ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ جمع کروائے گئے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اور اس کے اوپر سب کو انلائٹن بھی ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. دیکھیے, جو ان کے خلاف جو FIR میں ان کے خلاف جو الزام درج ہے یا جو آپ کہہ لیں دفعیں ان کے خلاف درج ہوئی ہوئی ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ پیکا کا آپ کا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا سیکشن نمبر 13, 14, 25, 26 پاکستان پینل کوڈ کا 420 اور 294B ہے, جن میں سے کسی کی بھی سزائیں کم سے کم 3 مہینے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک آدھی کی صرف 7 سال ہے, باقی سب کی 3 ماہ, 6 ماہ اور 9 ماہ ہے. اب بات اس وقت سمجھنے کی امپورٹنٹ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے 3 ماہ سے زیادہ اپنا ٹائم جیل میں گزار دیا ہے, تو انہوں نے آدھی سزا تو ویسے ہی کاٹ لی ہے. جہاں تک بات آتی ہے دوسری, اس میں ہے فائن اور اتنی زیادہ پنشمنٹ آپ کو مل سکتی ہے ڈسکریشن آف دا کورٹ کے اوپر, جس کو ہم لوگوں نے بیل میں بھی جب ہم لوگوں نے ان سے لی تھی تو کورٹ سے ہم نے آرگیو کیا تھا, اور سپریم کورٹ کے ہمارے پاس ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے صاف صاف یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب تک آپ کا کرائم پروہیبٹری کلاز میں نہیں فال کر رہا, اور پروہیبٹری سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا سنگین قسم کا جرم جس کی ناقابل معافی ہے یا کوئی بیلیبل آفینس نہیں ہے, تو آپ اس کے اوپر سیکھ کر سکتے ہیں بیل بھی, اور آپ کو ججز کو آرڈر بھی دیے گئے ہیں اور تاکید کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم سزا کے اوپر فوکس رکھا جائے. تو اس کا سوال یہ آتا ہے کہ سر میڈم, جہاں پہ ہم لوگوں کے لوگ ریپسٹ نکل جاتے ہیں بیلوں کے اوپر, جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک جج کے بیٹے دو بچیوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیتے ہیں اور ان کو دوسرے دن بیل مل جاتی ہے, وہاں بھی یہ کرائم تو خدا نہ خواستہ اتنا سنگین ہے ہی نہیں جس میں سے ایک آدھے کی میکسیمم سزا ہی 7 سال ہے. وہاں پہ آپ نے ایک انسان کو 22 دن کا فزیکل رکھ کے مزید اگلے اتنے دنوں کا جوڈیشل رکھ کے کیا نکالنا تھا؟ دس از اے ویری بگ کویسچن. بیرسٹر صاحب, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنے دن رکھ کے, اور یہ ڈکی بھائی خود بھی اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ریمانڈ تھا جو میرا ملا. یہ کس طرح سے ملا؟ ایک آپ نے اسلام آباد حادثے کا بھی ذکر کیا, اور پھر ڈکی نے جو ذکر کیا تھا کہ واٹس ایپ پہ مجھے دکھایا گیا کہ یہ انصاف فراہم کرنے والے, یہ آن بورڈ ہیں, ہم جس طرح کہیں گے اس طرح ہی ہوگا. تو کیا یہ سارا اسی کے تحت جو اتنا لمبا ریمانڈ ہے وہ چل سکا؟
देखिए, मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं हमारे सिस्टम या हमारे जुडिशरी को ब्लेम नहीं दूंगी जस्ट बिकॉज आई एम अ लॉयर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कह रही हूँ क्योंकि उसी सिस्टम ने उनको बेल भी दी है। मैं सिर्फ इसके ऊपर यही बात कहूँगी जो सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि एट टाइम्स हमारे जो इदारे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। इदारों के अंदर कोई ऐसी मछलियाँ होती हैं जो इंसाम फराहम करने के बायस लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर ही एक इंसान को जो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए उस इदारे के थ्रू वो नहीं मिल पाता। जैसे अभी NCCI भी एक सिचुएशन सामने आई है। अगर हम दूसरी तरफ अगर आप इदारे की ही हम बात करें तो हम FIA की भी अगर बात कर लेते तो वही इदारे ने ही उसको फराहम प्रोवाइड किया, वही इदारा इस सिचुएशन में उनका मुद्दई था। तो ये बात भी हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक इट डिपेंड्स कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उन लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है जो इस तरह की इंस्टीट्यूशन में रह के अपनी सिचुएशन को बैरिस्टर साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इदारे नहीं होते हैं बल्कि कुछ काली भेड़ें होती हैं जो इस तरह का रवैया रखती हैं और डकी को हर कोई सपोर्ट ही कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी उनको पजीराई मिल रही है और हम भी उनकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। उस सारी सूरत हाल के बाद यकीनन ये केस जो है एक नया रुख इख्तियार कर गया है। हम ये भी देख रहे हैं कि 9 करोड़ रुपए की जो करेंसी है उसकी मद हम देखें 9 करोड़ ऑलमोस्ट वो रिश्वत की सूरत में लिए गए हैं। तो क्या ये जो ट्रांसफ़र है इसकी ब्लॉकचेन ट्रेस अदालत के सामने रखी गई है? मैडम, इसकी जो हम लोगों की समाअत है वो 20 दिसंबर को इंशाल्लाह होगी और 20 दिसंबर को उनके चार्जेस भी फ्रेम होंगे और उसके बाद ये ट्रायल इंशाल्लाह कोर्ट में चलेगा, जिसके अंदर हम सारे ये एविडेंस पेश करेंगे कि किस तरीके से इसकी ट्रायल में क्या है, कौन से उन्होंने अपने एसेट्स बेचे जिसके अंदर उनके ये पैसे आते हैं, कितनी उन्होंने ट्रेडिंग की जहाँ से उनके पैसे इन हुए और आउट हुए, और हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो हम लोगों की समाअत में सामने आएंगी। अच्छा बैरिस्टर साहिबा, ये भी बताइएगा अब कौन कौन किसे महाज हैं जिन पर आप कानूनी जंग लड़ रही हैं? मतलब एक तो सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं ये जो 6 अफसरान हैं इनको, और उसके अलावा ये जो 9 करोड़ रुपए जो बाद में पहले तो रिश्वत की मद में लिए गए, बाद में माले मुकदमा या किसी और खाते में डालकर सरकार के पास जमा करवा दिए गए, ये भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से महाज हैं इस पर? देखिए, ये भी हम लोगों ने जाहिर सी बात है रिकवर तो करने हैं क्योंकि हम लोगों ने जैसे वो 90 लाख उन्होंने रिश्वत में उन्होंने लिए थे वो तो हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं जो सीजर मेमो में थे। अब ये वाले भी जो आए हैं इंशाल्लाह ताला वो भी हमें यकीन है कि वो है तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास है, तो एटलीस्ट इतनी गारंटी है कि एक सेफ हैंड्स में, तो इस वजह से वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल डेफिनेटली हम इसके लिए भी फाइट करेंगे और ये भी हम लोग सीख कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग वो सब चीज़ें सीख करना चाह रहे हैं जो इन्होंने जब इनको अरेस्ट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने इनसे लिए थे, जिसमें इनके फोन्स हैं, इनके लैपटॉप्स हैं और बेशतर और भी चीज़ें हैं। अच्छा बैरिस्टर साहिबा, हमने देखा है कि कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि जिस सोशल मीडिया पर इस तरह के व्लॉग करके जो कानूनी तौर पर केस होता है वो मजबूत नहीं रहता, मौक़िफ़ यही सामने आया। आपको क्या लगता है ऐसी वीडियोस से आपका मौक़िफ़ मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? देखिए, ना मजबूत होगा ना कमज़ोर होगा। द रीज़न ये किया जाता है इज़ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, उनके 9 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, उनको इंस्टाग्राम पे भी पूछा जाता है, उनको यूट्यूब पे भी पूछा जाता है। 100 दिन से वो खामोश थे। आपने जैसे उन्होंने अपनी वीडियो में भी आपने देखा होगा हर जर्नलिस्ट उनसे पूछना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आप यकीन करें मेरी कई जर्नलिस्ट के साथ आप उसके साथ वो हो चुकी, उन्होंने कहा कि मैडम ये बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि बात ये थी कि वो कहते थे कि मैं एक ही दफ़ा बात करूंगा और फिर मैं अपने लिहाज से बात करूंगा एंड आई वांट पीपल टू नो कि मेरे साथ हुआ क्या है ताकि किसी और के साथ ये ना हो, या अगर हो भी रहा हो तो उसको समझ में आ रहा हो कि मेरे साथ होना क्या है। क्योंकि माजी में हमने नहीं ऐसे देखा कि ट्रेडिंग के ऊपर या क्रिप्टो के ऊपर अगर किसी की गिरफ्तारी डाली जाती है तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या किए जाते हैं, ये पहले ही एक चीज सामने आई है और ये लोगों के लिए भी प्रेसिडेंट सेट हुआ है। तो इस वजह से शायद ये बातें उनकी तफसीलन बताना जरूरी थी और लोगों तक आगाही देना जरूरी है। इसका केस के ऊपर बिल्कुल किसी तौर पे हर नहीं इम्पैक्ट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बैरिस्टर साहिबा, दो आपको पता है कोई भी मामला हो दो मुख्तलिफ आरा जो हैं वो पाई जाती हैं, 2 से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन अब जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है डकी को, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बेशक बाकी लोगों ने भी किया, इससे ये साबित नहीं होता कि आपने जो किया वो ठीक था। यानी गैर कानूनी जुए की ऐप्स की तशहीर के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग और भी इस पर इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये किया, तो लोग ये भी मौक़िफ़ दे रहे हैं कि जनाब ये असल जुर्म से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है इदारे पर हमला। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या जवाब देना चाहेंगे?
कि लॉ की एक टर्म है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। पहली बात हमारा मुझे लगता है कि एक इंसान की शायद हम लोगों का एक तरीका कार होता है कि जो मुलजिम होता है ना, हम उसको मुजरिम अपनी किताबों में पहले ही कहते थे जब तक कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया होता। अभी ट्रायल चलेगा इंशाल्लाह ताला, अभी तो चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, और इंशाल्लाह ट्रायल में जब हम उन्हें एक्विट करवा लेंगे, जो कि सबके सामने आएगा, वो चीज़ पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनकी गलती नहीं है। और मैंने सर आपको जैसे अभी बताया मैडम कि जो चार्जेस भी उन पे फ्रेम होने हैं, जो चलान में उन्होंने पेश किए गए, जो FIR में पेश किए गए हैं, वो इतने हीनियस क्राइम्स है ही नहीं जिन पे इतनी बहुत बड़ी सजाएं दी जाए। तो अगर मिनिमम सजा के ऊपर भी फोकस किया जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर, तो इतनी तो सजा उन्होंने वैसे ही काट लिया। तो ज्यादा से ज्यादा अगर देना भी होगा तो क्या थोड़ा बहुत फाइन देना होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं ही नहीं जिसके ऊपर आप किसी को सारी जिंदगी की सजा दे दो या आप किसी किस्म की उसके ऊपर किसी और तरह की चीजें उसको पे लगा दो। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी ट्रायल में जाहिर है मैटर स्टार्ट होगा, हमें अपनी जुडिशरी पे यकीन है कि वो जस्टिस देंगे, और तभी हम बात ये कर सकते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा क्राइम हुआ भी था या नहीं। लास्टली बैरिस्टर साहिबा, अगर आपके पास वाकई ठोस शवाहिद हैं तो फिर अब तक NCCIA के खिलाफ आईनी पिटीशन क्यों नहीं दायर हुई, और अगर होनी है तो कब तक दायर होगी? देखिए, अभी तक तो दे आर बिहाइंड द बार्स, अभी तक तो उन्होंने अपनी बेल्स के लिए भी अप्लाई नहीं किया। डेफिनेटली जब वो अपनी बेलों के लिए अप्लाई करेंगे तभी हम कंटेस्ट करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद इसको भी प्रोसेस में लेके आया जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि जब आप इस केस को परस्यू करेंगी तो कितनी सजा इन अफसरान को हो सकती है? वैसे देखिए, डिपेंड करता है, डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। जो दफाएं उन पे दर्ज हुई हुई हैं उनकी बेसिस के ऊपर है। कई लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कई लोगों को हो सकता है उनका तबादला कर दिया जाए और किसी ऐसी पोजीशन में उनको बिठा दिया जाए जो शायद उनके लिए नाकाबिल कबूल हो, और कई जगहों पे ये भी हो सकता है कि उनको ऑफ ड्यूटी कर दिया जाए। ये डिपेंड करता है, एंड अगेन ये डिस्क्रेशन ऑफ द जज के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमृत अहमद शेख साहिबा हमारे साथ थी।